नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज द प्री मार्केट रिपोर्ट video for 11th September, that is for Thursday. So without wasting time, let us quickly look at the FNO positions carried by the market participants, retailers, DIA, FA and pros for Thursday. Yeah, let us first understand how to read this data. Tuesday means, so 2 days ago, what positions carried by these market participants. Wednesday means what positions the market participants carried for Wednesday, and total what positions they are, net positions they are carrying for Thursday. हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं. इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग देखेंगे तो रिटेलर ने आज कुछ 5,700 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किया और उनका नेट लॉन्ग reduced to 1.26 lakhs. DI negligible number. FA they purchased 3,700 contracts and their net shorts reduced to 1.86 lakh. Pros they added 1,300 contracts and their net long increased to 21,000. So if you look here, I would say this data is mixed to bullish for Thursday, because retailers are the only sellers and FI and pros are the net buyers, but the volumes are very less. Overall, if you look at, I would say this data is still bearish because pros are holding heavy index future shorts and retailers are the major longs. For index coal, so retailers sold around 6,800 contracts today and their net long reduced to 11,000. DIA no activity. FAI they sold 33,000 contracts and their net shorts increased to 53,000. Pros they've added another 40,000 longs and their total longs increased to 58,000. I would say this data is also looking bullish because uh, retailers longs reduce and pros are holding 58,000 contracts on the long side. If you look at index put, so index put, retailers purchased 19,000 contracts today and their net shorts reduced to 3.82 lakhs, but still these numbers is very big. तो इसका नतीजा क्या होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगा भी, नीचे जाने का डर रहता है. DA they sold around 10,000 contracts. FA also sold around 36,000 contracts. Pros they purchased 26,000 longs. So overall, I would say this data is still bearish because retailers are still holding 3.82 lakh contracts in index put short. Both FA and pros are sitting in the long side. स्टॉक फ्यूचर में देख लेते हैं. स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर sold around 8,000 contracts. DIA they also sold around 11,000 contracts, but FA and pros they are net buyers. FA purchased around 8,600 contracts on the long side, and pros also purchased 10,500 contracts on the long side. So overall, I'd say the stock future data is still bullish because FA is carrying very good numbers on the stock future long side. Stock coal. So this data, the volumes are less, but the key things to note is here retailers added another 4,000 contracts on the long side and their total long reached to 4.57 lakh. This number is not at all good for the stock up momentum. अगर स्टॉक ऊपर जाएगा वो तो नीचे आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं. आज एफ आई एंड प्रोस दे परचेस वेरी लिटिल वॉल्यूम बट ओवरऑल दे आर नेट शॉर्ट्स इन द स्टॉक कॉल साइड. तो इसका नतीजा क्या हो सकते हैं? कुछ सेक्टर्स कल सेलिंग प्रेशर में दिख सकते हैं, स्पेशली जो इनिशियल अपमूव के बाद हमारा जो आईटी सेक्टर नीचे जा सकते हैं और फर्स्ट हाफ में ऑटो सेक्टर भी सेलिंग प्रेशर में रह सकते हैं. स्टॉक पुट में very less volume and activity, but overall retailers are still holding 2.1 lakh put writing and pros are holding 1.8 lakh of put longs in the stock put side. So this data, I would say this data mixed to bearish.
But overall, I would say, considering index future, index call, and stock futures, this data looks mixed to bullish for up momentum. अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो हमारा मार्केट भी कुछ 40-50 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये जो इंडेक्स फूड का डाटा है, खतरनाक डाटा है। इसके ज़रिए क्या हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा भी एक डिप आना माँगता है, तो वॉच फॉर दैट। और कैश मार्केट में डाटा देखेगा तो डीआईए ने अच्छा खासा बाय किया 5000 करोड़, और एफआईआई का सेलिंग बहुत ही कम है, 116 करोड़। सो दिस आल्सो लुक्स पॉजिटिव फॉर टुमारो। लाइक मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी और सारे इंडिसेस आज पॉजिटिव खुला। वो इसलिए खुला है कि ट्रम्प और मोदी का बीच में जो ट्वीट्स चल रहा था, इसके ज़रिए एक पॉजिटिविटी आ गया मार्केट में, और जो टैरिफ हट सकते, मार्केट को कुछ उम्मीद जग गया। तो एंड दिस पॉजिटिव मोमेंटम कैन कंटिन्यू अनलेस समथिंग बिग नेगेटिव हैपेंस। So Nifty closed more than 100 points up. Sensex more than 3,300 points. Sensex more than 300 points. And Bank Nifty also more than 300 points. Mid cap was the best performing index today. Mid cap closed more than 150 points. It is 1.22 percentage. इंडिया विक्स और नीचे गिर गया। तो जब तक इंडिया विक्स ऊपर नहीं जाते, सेलर और बायर को कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली लॉस ही लॉस दिखेगा। तो मेरे हिसाब से कल खुलते ही करीब 3% का अप मूव आने चाहिए इंडिया विक्स में, तभी जाके जो प्रीमियम्स बढ़ेगा। आज बड़े लोगों ने क्या किया, तो पी का प्रीमियम को नीचे लाने के लिए उन्होंने जो सिंथेटिक फ्यूचर को स्पोर्ट से ऊपर रख दिया कुछ 0.1 परसेंटेज। तो इसके ज़रिए जो पी का प्रीमियम है पूरा टूट गया। तो कल इंडिया के ऊपर नज़र रखना। और यूएसडी आईएनआर है, अगर रुपये में कुछ स्ट्रेंथ आया, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा स्ट्रेंथ आया, इसके ज़रिए बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आया। अगर रुपये और स्ट्रेंथन हो जाएगा तो बैंक निफ्टी और अच्छा मूव करेगा। क्रूड थोड़ा सा ऊपर दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर चला गया तो बैंक निफ्टी को प्रेशर डाल सकते हैं। So if you look here, what moved our market today? So we have already discussed because of the comments from Trump and Modi that created positive optimism. एक और बात है, रेट कट का होप है। जैसे इन्फ्लेशन डाटा आना, आज पीपीआई डाटा आ गया यूएस का, और कल सीपीआई डाटा आएगा। तो मार्केट का अनुमान यही है कि इस बार फेड रेट कट करेगा। इसके चलते हुए आईटी स्टॉक्स पूरा बुलिश हो गया, और मेटल सेक्टर भी बुलिश हो गया। और एक और बात है, सो जीडीपी का अपग्रेड हुआ था। तो जीडीपी अपग्रेड किया था जो रेटिंग एजेंसी ने, इसके चलते हुए और थोड़ा और पॉजिटिविटी हमारे मार्केट में आ गया। सो कल के लिए सम स्टॉक्स टू वॉच। सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू द डिटेल्स, प्लीज पॉज एंड वॉच दिस न्यूज़। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। वन इज ऑन कोटक महिंद्रा बैंक, देन समथिंग ऑन टाटा मोटर्स, सन फार्मा, बजाज ऑटो। चलिए हम लोग एक बार टॉप गेनर्स और टॉप लॉसेस का भी देख लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट sometimes, take an example, today market opened gap up, after that we didn't get any chance, we didn't get much chance other than scalping for doing trading in the indexes। पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट आज पूरा दिन रह गया, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम लोगों को कुछ पता है, स्टॉक के बारे में पता है, अगर कुछ अच्छा अच्छा स्टॉक को आप ढूंढ के रखो तो ये स्टॉक काम में आएगा। तो इसमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप लोगों को मिल सकते हैं। तो कल के लिए आप लोग क्या देख लेना, तो ये जो टॉप गेनर्स है इसमें अच्छा वॉल्यूम कौन कौन सी स्टॉक में, उनको देख लो। और मार्केट खुलते अगर मान लो इसमें से हल्का सा डिप आएगा, उसके बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें कंसिडर कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर आईटी स्टॉक्स। बाकी जितना भी स्टॉक्स है उसमें अगर मान लो एक डिप आ जाते, शुरू में एक डिप आ जाते, उस डिप के बाद आप बाइक के लिए रेडी रहना। ज़्यादा पॉइंट नहीं, 10-12 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। तो लुक फॉर ऑल दिस टॉप गेनर्स। मैंने इसलिए वॉल्यूम ऐड किया, वॉल्यूम को चेक करना, जहाँ जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम है उसी स्टॉक को पिक कर लेंगे। श्रीराम फिनांस है, और यहाँ देखा तो टाटा कंज्यूमर है, ये कुछ स्टॉक्स है। और रहा बात आईटी का, आईटी में मेरा ऑपोजिट व्यू है। कल के लिए क्या क्या करना है, अगर मान लो आईटी में गैप अप हुआ,
गैप अप को चेस नहीं करना, एक गैप अप के बाद एक अप मूव का वेट करना, उसके बाद आईटी में शॉर्ट का सोच सकते हैं। ज़्यादा पॉइंट नहीं, 10-15 पॉइंट्स के लिए, स्पेशली टेक महिंद्रा, टीसीएस और जो एचसीएल टेक वगैरह में आप लोग शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं, जो शुरू का अप मूव का बाद खुलते ही शॉर्ट नहीं करना, थोड़ा वेट करो, ये अप मूव आएगा उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग निफ्टी टॉप लॉसेस को भी अब हम लोग एक बार देख लेते हैं। निफ्टी जैसे एम जितना भी ऑटो स्टॉक्स है, मेरा हिसाब से जो फर्स्ट हाफ में ऑटो स्टॉक्स और थोड़ा प्रेशर में रह सकते हैं। अगर इसमें अप मूव आ गए तो आप उसको सेलिंग के जरिए कंसिडर कर सकते हैं। You can buy some PE and make some profit in these stocks as well. So I just mark the high volume stocks, देखते रहना। And finally some important global data also I wanted to present to you. आज यूएस में पीपीए डाटा रिलीज हुआ। व्हाट इज पीपीए डाटा? पीपीए डाटा इज द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीए का मतलब है जो होलसेल इन्फ्लेशन को देखने के लिए पीपीए का मेजरमेंट देखते हैं। एंड एक्सपेक्टेशन था 0.3 और ये आया 0 - 0.1 आया। तो प्रीवियस था 0.7, तो ये नीचे आया। इसका दो मतलब है, ये इसका एक डायरेक्ट मीनिंग है फेड का रेट कट ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाते हैं। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना नीचे जो पीपीआई जा रहे हैं इसका मतलब है इकोनॉमी एक्टिविटी अच्छा नहीं है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर द मार्केट। तो when PPA decreases from one period to the next, it means that the average producers are getting paid less for what they make. इसका मतलब है जितना भी जो प्रोड्यूसर्स है, इनके जो रॉ मटेरियल लेके जो बनाते हैं, वो कम दाम में बेचना पड़ता है उनको। और आप लोगों के लिए मैंने ये भी लिखा है, अगर पीपीआई ऊपर जा रही है इसका मतलब है हायर इन्फ्लेशन रिस्क है। फेड इसमें रेट कट नहीं करते। तो लेकिन ये नीचे आया, इसका मतलब है फेड रेट कट कर सकते हैं। दिस इज बुलिश फॉर बॉन्ड्स एंड स्टॉक मार्केट एज वेल। बट इसमें क्या है, ये जो ग्रोथ आउटलुक है उसमें कंसर्न आ जाते हैं। लेकिन क्या आजकल मार्केट ये जो ग्रोथ वगैरह में कुछ देखते नहीं, मार्केट जो शॉर्ट टर्म गेन के बारे में सोचते हैं। अभी क्या है, वो लोग देख रहे हैं कि फेड का रेट कट होगा और सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा। चलिए हम लोग एक टेक्निकल व्यूअर आउटलुक फॉर थर्सडे। तो थर्सडे सेंसेक्स का एक्सपायरी भी हम लोग उसका लेवल भी देख लेते हैं। सो हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी सपोर्ट इट इज एट 24,960। इफ निफ्टी ब्रेक्स बिलो 24,960 देन कंसिडर ए शॉर्ट। फर्स्ट टारगेट यू विल गेट 24,920 फॉलोड बाय 880 एंड मेजर सपोर्ट इज एट 24,670। जब तक 24,670 इंटैक्ट है, इसमें चिंता करने के लिए कोई बात नहीं, निफ्टी बाई ऑन डिप्स का रहेगा। एंड रेसिस्टेंस है, फर्स्ट रेसिस्टेंस 24,990। अगर 24,990 क्रॉस हुआ तो नेक्स्ट टारगेट है 25,40। 25,40 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बनते हैं एंड दैट कैन टेक द मार्केट टू 25,100। ए decisive break above 24,40 can open a psychological level 24,100 to 25,200। और निफ्टी का पीसीआर है 1.08 है। दिस इज नॉट इन ओवरसोल्ड टेरिटरी और नॉर अंडर ओवरबोट टेरिटरी। बैंक निफ्टी का हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 54,400। अगर 54,400 टूट गया तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 54,250। अगर वो भी टूट गया 54,50 तक आ सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 53,800 है। जब तक 53,800 होल्ड है, बैंक निफ्टी में बाउंसेस आते रहेंगे। और रेसिस्टेंस है कल के लिए 54,600। अगर 54,600 के ऊपर निकल गया तो आप लोग एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 750 मिलेगा और 750 के ऊपर चला गया तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगा 54,900, 55,000 तक आ सकते हैं। और जो मेजर रेसिस्टेंस है 54,750। 750 टूट गया तो एक अच्छा खासा ब्लास्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.98 है। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर अप मोमेंटम। और सेंसेक्स का जो सपोर्ट है 81,400 में। अगर 81,400 के नीचे चला गया तो आप लोग एक शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। 100 पॉइंट का टारगेट रखना। मेजर सपोर्ट है 81,000। अगर 81,000 टूट गया तो ये बहुत नीचे तक जा सकते हैं। रेसिस्टेंस 81,500 इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस। इसके ऊपर आप लोग एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। 100 पॉइंट का टारगेट रखना। अगर 81,600 के ऊपर निकल गया तो 81,800 सॉरी
87 लिखा है, 87 नहीं है, 81,800 है, टाइपो है। और रहा बात शॉर्ट कवरिंग का, 81,600 के ऊपर एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। और इसका पीसीआर भी 1.06 से, ये भी अच्छा है अप मूवमेंट के लिए। तो अगर हमारा जो फाइनल व्यू है, ग्लोबल मार्केट रिमेन्स पॉजिटिव है, क्योंकि जो पीपीआई डाटा भी एक्सपेक्टेशन से नीचे आया तो रेट कट का होप और ज़्यादा बढ़ गया। सो द रैली कंटिन्यूएशन इज एक्सपेक्टेड इन आवर मार्केट। तो then the technical levels for Nifty is that Nifty is, it is successful in holding above the 21-day EMA, that is 24,820। आज भी इसके ऊपर ही टिकता रहा, तो ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। तो बाय ऑन डिप्स रहेगा कल भी, और मेरे हिसाब से कल भी कैप रहेगा, डाउन मूव कैप रहेगा। सो कुछ पॉजिटिव बुकिंग आ सकते हैं। जो जो इन्फ्लेशन डाटा, सीपीआई डाटा है कल का, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है कल के लिए। हम लोग इधर देख सकते हैं पीपीआई डाटा। तो उसके बाद ही ये पता चलेगा ये पीपीआई ठीक था कि सीपीआई ठीक था। और एक और है, सितंबर 16-17 एफओएमसी मीट है, उसमें रेट कट आ सकते हैं। तो मेरा व्यू है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना बोथ साइड के लिए, ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं सोचना, स्कैल्पिंग मोड में रहना। So that's all in this video guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like this video.